મિત્રો, ફરી એકવાર ગ્લોરિયસ ચરોતરમાં આપનું સ્વાગત છે. દુધાળા પશુની સ્વસ્થતા માટે વિદ્યાર્થીઓએ વિકસાવી સંપૂર્ણ સ્વદેશી ડિવાઇસ. ન્યૂ વલ્લભ વિદ્યાનગર સ્થિત ADIT કોલેજના ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજીના વિદ્યાર્થીઓએ મેસ્ટેટાઇટિસ અને એસ્ટ્રોસ સાયકલ ડિટેક્શન ડિવાઇસ તૈયાર કરી છે, જેનો મુખ્ય હેતુ પશુઓના સ્વાસ્થ્ય અંગે અને વધુ ગુણકારી દૂધના ઉત્પાદનમાં મદદરૂપ થાય એ માટે. દુધાળા પશુઓની માવજતમાં સહેજ પણ ઉણપ રહી જાય તો દૂધ ઉત્પાદન પર તેની માઠી અસર પડે છે. પશુપાલનમાં વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણ અપનાવીને પશુઓની માવજત કરવાથી સારામાં સારું દૂધ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. ભારત દૂધ ઉત્પાદનમાં વિશ્વભરમાં અગ્રેસર છે, પરંતુ પશુઓની દૂધ ઉત્પાદકતા અન્ય દેશોના પશુઓની સરખામણીમાં ઓછી છે. જેથી દૂધ ઉત્પાદકતામાં વધારો થાય તે હેતુથી પશુઓના સ્વાસ્થ્યને લઈને વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. પશુઓની સ્વસ્થતા જળવાઈ રહે તે માટે વિદ્યાર્થીઓએ સંપૂર્ણ સ્વદેશી ડિવાઇસ વિકસાવી છે, જેનાથી દુધાળા પશુઓના પ્રજનન ચક્ર વિશે સચોટ જાણકારી મળી રહે છે, તેમજ પશુઓમાં જોવા મળતા મેસ્ટાઇટિસ એટલે બાવળાનો સોજો વિશે શરૂઆતના તબક્કે જ જાણકારી મેળવી શકાય છે. આ બંને ડિવાઇસથી પશુપાલકોને પશુ ઉછેરમાં ઘણી ઉપયોગી સાબિત થશે અને પશુઓની સ્વસ્થતા જાળવાશે તો દૂધ ઉત્પાદન પણ સારું મેળવી શકાશે. ચારુતર વિદ્યામંડળ સંચાલિત AD પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી ADITમાં ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી પ્રજ્વલ પારેખ, ઓમકાર સેવડે, વૃંદ શાહ, રિયા પટેલ, અક્ષત બારોટ, આર્યન દોંગા અને ધૈર્ય પટેલ દ્વારા ડૉક્ટર અંકિતા સિંઘના માર્ગદર્શન હેઠળ ફિટ કાવ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ડિવાઇસ તૈયાર કરી છે. તો આવો આપણે જાણીએ તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી. જે આપનું નામ અને પરિચય. નમસ્કાર, મારું નામ પ્રજ્વલ પારખે છે અને હું ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી 4th યરનો સ્ટુડન્ટ છું. આપણું જે ઇન્ડિયા છે એ લીડિંગ પ્રોડ્યુસર ઓફ મિલ્ક છે, પણ દર વર્ષે 3% મિલ્ક વેસ્ટ થાય છે. એના પાછળના બે કારણ છે. એક તો ગાયને રોગ થાય છે, જેને આપણે મેસ્ટાઇટિસ કહેવાય, કાં તો એનું ઈસ્ટ્રસ સાયકલ પીરિયડ હોય છે એ આપણાથી મિસ થઈ જાય છે, જેમાં આપણે એને પ્રેગ્નન્ટ કરી શકીએ. તો અમારું જે પહેલું ડિવાઇસ છે એ છે મેસ્ટાઇટિસ ડિટેક્શન, જેમાં તમે ખાલી જે પ્રોબ છે એ ખાલી દૂધમાં તમે ડીપ કરો અને તમને વિથિન સેકન્ડ્સ તમને રિઝલ્ટ બતાડી દે કે તમારે ગાયને મેસ્ટાઇટિસ છે તો કયા લેવલનું છે. હવે એ મેસ્ટાઇટિસ તમે વહેલા ડિટેક્ટ કરો તો તમારી જે કોસ્ટ છે અને જે ટાઈમ છે જેમાં ગાય દૂધ આપી શકે એ પણ ઓછું થઈ જાય. અને જે હાલમાં પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં એ છે 53,000નું, પણ અમારું આ પ્રોડક્ટ નિયરલી 10,000માં અમે વેચીશું. તો ફાર્મર્સને પણ બહુ ફાયદો થશે આનાથી. અને જે બીજો પ્રોજેક્ટ છે એ છે ઈસ્ટ્રસ સાયકલ ડિટેક્શન. હવે ઈસ્ટ્રસ સાયકલ જ્યારે સ્ટાર્ટ થાય એમાં ગાય ચાલવા વધારે લાગે અને ખાય ઓછી. તો હવે એ અમે એક ટેગ છે જે ખાલી તમે એના ગળામાં લટકાવો અને એને બધું મોનિટર કરે કે કેટલું ચાલી દિવસમાં અને કેટલું ખાધું દિવસમાં. તો એના પરથી તમને એ સાયકલ જે ઈસ્ટ્રસ સાયકલની વિન્ડો છે જેમાં એ પ્રેગ્નેન્ટ થઈ શકે એ તમને પકડમાં આવી જાય. ધન્યવાદ. मेरा नाम ओमकार प्रदीप शोड़े है. मैं फूड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ ADIT से. हमारी टीम ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट
बनाया है जो मैस्टाइटिस डिटेक्ट कर सकता है, उसके साथ साथ स्ट्रेस भी डिटेक्शन कर सकता है। मैस्टाइटिस एक ऐसा आज़ार है जिससे मिल्क जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और ह्यूमन हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं होता। तो वो डिटेक्ट करने के लिए हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है जो कंडक्टिविटी के बेस पे मैस्टाइटिस डिटेक्ट करेगा। मैस्टाइटिस के भी बहुत सारे स्टेज है, जैसे सब क्लिनिकल हो गया, क्लिनिकल हो गया, क्रोनिक हो गया, पर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया है कि जो सब क्लिनिकल लेवल पे ही डिटेक्ट करेगा मैस्टाइटिस। और दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट ये है कि जो स्ट्रेस साइकिल होती है, जिससे कि हमारा ब्रीड है, एक कंसिस्टेंट ब्रीड आता है, कंसिस्टेंट मिल्क क्वालिटी आती है, मिल्क यील्ड आता है। तो ऐसा डिवाइस हमने डेवलप किया है जो स्ट्रेस साइकिल एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस साइकिल होता है सिर्फ 12 या 18 घंटे के लिए, और एक बार मिस हो गया तो वो डायरेक्टली अगले पीरियड तक मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है हमारा। तो इस वजह से हमने स्ट्रेस डिटेक्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट डिज़ाइन किया है जो कि रूमिनेशन, मतलब जो गाय खाएगी और गाय चलेगी उसके आधार पे डिटेक्ट करेगा कि ये मैस्टाइटिस स्ट्रेस के स्टेज पे है कि नहीं। जैसे कि चबाना और चलने का जो कर्व है वो एक पैनल पे आ जाता है और उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि स्ट्रेस साइकिल में अभी है, तो उस वजह से हम स्ट्रेस डिटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। નમસ્કાર, મારું નામ રિયા જસવંતભાઈ પટેલ છે. હું હમણાં 4th યર ફૂડ ટેકનોલોજીમાં સ્ટડી કરું છું ADIT કોલેજ અંદર. અને મેં અને મારા 3 મિત્રોએ અમે એક પ્રોજેક્ટ પર બનાવ્યો છે. એ છે ગાયોમાં મેસ્ટાઇટિસ જે થનેલાના નામથી પણ ઓળખાય છે એ બીમારીનું ડિટેક્શન કરવા માટે. આ એક અમારું ડિવાઇસ એ કંડક્ટિવિટીના બેસિસ પર એ ડિટેક્ટ કરે છે કે આ ગાયને એ થનેલા બીમારી છે કે નહીં. મિત્રો, ફિટ કાઉ પ્રોજેક્ટ બાબતે આપણે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી. હવે આ સંપૂર્ણ પ્રોજેક્ટમાં ડૉક્ટર અંકિતા સિંહ કે જેઓ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે તેમણે આ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન સાથે ગાઈડ પણ કર્યા હતા. તો આવો જાણીએ તેઓનું આ પ્રોજેક્ટ વિશે શું કહેવું છે. अंकिता सिंह है और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ADIT कॉलेज CVM यूनिवर्सिटी में बच्चों ने ऐसे 2 प्रोजेक्ट किए हैं जिससे हम गायों से दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं. हमारे देश का एम है कि 2025 तक 53.5 का दूध उत्पादन होना चाहिए, जिससे सभी की दूध की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी और हम दूध एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे. हमारा देश इस समय लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, साथ में कैटल हेड भी सबसे ज़्यादा है. उसके बावजूद भी दूध उत्पादन या एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं हो पाता है जिस तरह से दूसरे देशों का देखा गया है. अगर दूध उत्पादन देखा जाए तो गाय के सबसे पहले तो हीट पीरियड को डिटेक्ट करना ज़रूरी है, जिससे उसको टाइमली बच्चे पैदा हो सके और सही ब्रीड के कर सकें. इसके लिए हीट पीरियड डिटेक्ट करने के लिए हमारा एक प्रोटोटाइप है जो सिर्फ 12 से 18 घंटे नहीं, पूरे महीने उस पर काम करेगा. और हीट पीरियड डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कई बार क्योंकि 12 से 18 घंटे के बीच में किसान इसे देखकर पहचान नहीं पाता है. दूसरा जो प्रोटोटाइप है वो है मैस्टाइटिस डिटेक्शन के लिए, और जिसे हम थनैला रोग भी कहते हैं. एक बार दूध उत्पादन शुरू हो जाए तो कई बार गाय के थन में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण उसके खून आने लगता है दूध में, और दूसरे बैक्टीरिया भी आते हैं. इसे डिटेक्ट करने के लिए कंडक्टिविटी मीटर बेस्ड बनाया गया है जो सब क्लिनिकल स्टेज पे ही, जो कि शुरुआती स्टेज होती है मैस्टाइटिस की, वहीं पे उसको डिटेक्ट कर लेगा. इससे अगेन उत्पादन बढ़ेगा, गाय की हेल्थ सही रहेगी और रिप्रोडक्शन भी उसका टाइम से होगा. इससे हम देश के लिए दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं. और जो 3% की कमी पूरे देश में है, कई राज्यों को ये पूरे साल भर अच्छा और रेगुलर दूध सप्लाई कर पाएंगे. धन्यवाद. મિત્રો, આ પ્રોજેક્ટ મેક ઇન ઇન્ડિયાને સાર્થક બનાવશે. આ બાબતે જાણીએ ADITના પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર વિશાલ સિંહ શું જણાવે છે. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिंह, प्रिंसिपल ADIT कॉलेज CVM यूनिवर्सिटी. हमारे बच्चों ने 2 बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए हैं. ये जो है दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स डेयरी टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने का पोटेंशियल रखते हैं. पहला जो डिवाइस बनाया है, ये जो पहला डिवाइस बनाया हुआ है, ये एक
कंडक्टिविटी मीटर है, जिससे कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस नाम की बीमारी को पता करने में मदद मिलती है। अगर ये वाली बीमारी जल्दी पता चले तो कैटल की अच्छा उपचार किया जा सकता है, जिससे कि दूध का प्रोडक्शन आगे चल के बेहतर क्वालिटी का मिलेगा और अच्छा मिलेगा। दूसरा एक जो है डिवाइस डेवलप किया गया है जिसमें कि ब्रीडिंग साइकिल, प्रजनन साइकिल में अर्ली जो है डिटेक्शन में मदद मिलती है और ब्रीडिंग का टाइम जल्दी हो जाता है, जिससे कि किसानों को फ़ायदा मिलेगा। हमारे यहाँ डॉक्टर अंकिता सिंह ने बच्चों को गाइड किया हुआ है और ये फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंडर डॉक्टर जो है श्रीवास्तव साहब ने इसको जो है प्रमोट किया। यूनिवर्सिटी में इसकी पूरी फंडिंग की फैसिलिटी है। आइडिया लैब भी अवेलेबल है, जो कि इनको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट हो तो उसको जो है प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ ऐसा एक कल्चर है कि जहाँ पर बच्चों को जो भी आइडिया हो उसको वो कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करे, इसमें पूरी मदद की जाती है, ताकि ये लोग आने वाले टाइम में मेक इन इंडिया जैसी चीज़ों को अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। આ ક્રાંતિકારી પ્રોજેક્ટ પશુપાલનમાં નવી ક્રાંતિ સર્જશે, જે અંગે ફ્રૂટ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી વિભાગના વડા ડૉક્ટર એસ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवमूर्ति श्रीवास्तव है। मैं एज हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में कार्यरत हूँ। और आज की जो डेवलपमेंट है, डेयरी सेक्टर की नीड है, बच्चों ने, मेरे को ये दिखता है कि बच्चों ने उसको फुलफिल किया है अंडर द मेंटरशिप ऑफ डॉक्टर अंकिता सिंह। और इस नीड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है, 24/7 लैब में वर्क किया है और फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट किया है, ताकि उस डेटा को सिमुलेट करके इस सिस्टम को बना सकें, जो एक रिक्वायरमेंट है आजकल, जिससे अगर ये सिस्टम परफेक्टली इंट्रोड्यूस हो गया तो ये एक रिवोल्यूशन डेयरी सेक्टर में होगा, जिससे किसानों की आय बहुत बढ़ेगी, किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। और डेयरी सेक्टर को जो एक विज़न उन्होंने क्रिएट किया है कि कि हमको जो प्रोसेसिंग करना है मिल्क की, वो उतना उनको रॉ मिल्क भी अवेलेबल होगा आने वाले समय में। ये एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया है जिसमें कि कंडक्टिविटी मिल्क की नापी जाती है, पूरी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, डेटा का पूरा ऑटोमेशन किया गया है। इसमें डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट किया जाएगा, जिससे किसान उसको मॉनिटर कर सकता है, मॉनिटर करने के बाद उसको एनालाइज कर सकता है और वो डेटा वो किसान अपने एक्सपर्ट को भी भेज सकता है, ताकि उसको पता चले कि इसमें और आगे हमको क्या कार्रवाई करनी है। इसमें अपने हमारे प्रिंसिपल साहब का भी पूरा सहयोग रहा है, मैनेजमेंट का भी पूरा सहयोग रहा है। फंडिंग जो प्रोवाइड की गई है उसमें भी मैनेजमेंट ने पूरा सहयोग दिया है हमको, ताकि बच्चों को एक फ्रीडम मिले काम करने के लिए, बच्चों को एक स्कोप मिले, थिंकिंग उनकी एक वाइड हो, जिससे वो नई चीज़ डेवलप करें और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, आज की प्रॉब्लम है, फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करें। थैंक यू।